जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के मोदी हुकूमत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जियों पर 16 समाअतों के बाद अपना तारीखी फैसला सुनाया। 5 रुकनी आईनी बेंच का फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया मरकजी हुकूमत का फैसला दुरुस्त था और ये बरकरार रहेगा। जब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना तो जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म हो गई। ऐसे में सदर जमहूरिया जम्मू कश्मीर के बारे में फैसला लेने का मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। इनके फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करे। अदालत ने मरकज से जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा भी जल्द बहाल करने को कहा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख UT ही रहेगी। जम्मू कश्मीर की कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी भी नहीं थी। इसका आइन हिंदुस्तान के आइन के तहत था। सदर की तरफ से इख्तियार का इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी नहीं था और इसके लिए रियासत के साथ किसी रजामंदी की जरूरत नहीं थी। accordance with the pits where the Constituent Assembly was not convened by then, the ruler of the state had to issue a proclamation accepting the Constitution. When a Constituent Assembly was convened in those states, the Constituent Assembly could make a recommendation for the modification of the Constitution as it applied to the state, and such a recommendation would be earnestly considered, into inverted commas, earnestly considered by the Union. The words recommendation of the Constituent Assembly referred to in Clause 2 shall be necessary before the President issues a notification, as it appears in the proviso to Article 370, Clause 3, and must be read in this context. Thus, the recommendation of the Constituent Assembly to begin with was not binding on the President. At the time of the framing of the Constitution of India, it was obviously within the contemplation that the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed for framing the Constitution for the state. It was not intended to be a permanent body, but a body with a specific remit and purpose. The power conferred by the proviso to Article 370, Clause 3, was hence something which would operate in a period of transition when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed and was in existence pending the drafting of the state constitution. The Solicitor General, appearing for the Union of India, submitted that statehood will be restored to Jammu and Kashmir and that its status as a union territory is temporary. The Solicitor General submitted that the status of the Union Territory of Ladakh will not be affected by the restoration of statehood to Jammu and Kashmir. In view of the submission made by the Solicitor General that statehood would be restored of Jammu and Kashmir, we do not find it necessary to determine whether the reorganization of the state of Jammu and Kashmir into two Union Territories of Ladakh and Jammu and Kashmir is permissible under Article 3. The status of Ladakh as a Union Territory is upheld because Article 3A, read with Explanation 1, permits forming a Union Territory by separation of a territory from any state. This court is alive to the security concerns in the territory. Direct elections to the legislative assemblies, which is one of the paramount features of representative democracy in India, cannot be put on hold until statehood is restored. We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी बताया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि हुकूमत के फैसले को अदालत ने बरकरार रखा है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए उम्मीद, तरक्की और इत्तेहाद का एक शानदार ऐलान है। और 370 से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह फैसला जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए मायूसकुन है। उमर ने कहा कि उनकी लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे पहले कि एक केस में 3 जजों की बेंच के फैसले मौजूद हैं जिनमें दफा 370 को मुस्तकिल करार दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 370 को 35A को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में तकसीम करना
यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, इन सब मामलों पे अपना फैसला सुनाया। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि हमारी उम्मीदों के मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि इससे ज़्यादा शायद हम कर नहीं सकते थे। हकीकत ये है कि हमारे मुखालिफ भी इस चीज़ को तस्लीम करने पे मजबूर हुए कि जहाँ तक केस का सवाल है, हमारे सबसे बेहतरीन वकील और उनकी जो कोशिशें रहीं, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हो, गोपाल सुब्रमण्यम साहब हो, मुझे नहीं लगता है कि उससे बेहतर वो कर सकते थे। 370 और रियासत दोबारा बहाल हो उसके लिए। बदकिस्मती से हम उन 5 ऑनरेबल जजेस को अपने मतलब सोच में हम उनको ला नहीं सके, उसके लिए तैयार नहीं कर सके, जिसके लिए न सिर्फ मुझे अफसोस है, हम माजरत खां हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, लद्दाख के लोगों के साथ और बाकी मुल्क के उन लोगों के साथ जो चाहते थे कि हम इस लड़ाई में कामयाब हो जाएं। मैं दिल की गहराइयों से उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी जगह ये भी कहना चाहता हूँ कि मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता। हमारी कोशिशें यहाँ ख़त्म नहीं होंगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो मीडिया से बात करने के लिए बाहर आना चाहते थे, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। लगा हुआ है। आपके अरेस्ट पे पूछ रहे हैं, पूछिए राजभवन से। आपके अरेस्ट पे ताला लगा हुआ है। आपके अरेस्ट पे पूछ रहे हैं, सुबह से बताया गया उमर अब्दुल्ला अरेस्ट है, अब बोल रहे हैं नहीं है, यू कैन टॉक टू द उमर अब्दुल्ला। अब देखिए ना, ताला लगा हुआ है। व्हाट यू कैन टॉक टू उमर अब्दुल्ला? ताला नहीं लगा? उठाइए इसका रील। ये खड़े हैं सारे यहाँ जिन्होंने मुझे बंद करके रखा हुआ है। पूछिए एलजी साहब से। मीडिया पे आके उन्होंने दुनिया को झूठ क्यों बोला? पुलिस वाले अभी हर घंटे बयान दे रहे हैं कि सारा कुछ नॉर्मल है। अगर सारा कुछ नॉर्मल है तो हमें बंद करके क्यों रखा हुआ है? क्या आप इस बात से मेरे साथी सुबह से बंद हैं। किस लिए? कसूर क्या है हमारा? Sir, they informed you that you will be placed under house arrest. Nobody informed. All I see is the lock since this morning. आप लोगों को वहाँ बंद करके रखा, मुझे इस तरफ बंद करके रखा हुआ है। झूठ बोलते हैं ये लोग। आपको कब पता चला? अब मैं गुस्से में आके गाली देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे जुबान पे आ रही है। झूठे हैं ये लोग। उमर साहब, आपको कब पता चला आप हाउस अरेस्ट हैं? सुबह से जब ताला लगा, सुबह 8 बजे के आसपास, जब ये लोग आए और इन्होंने अपनी हथकड़ी गेट पे लगाई। मुजरिम इनसे पकड़े नहीं जाते, हथकड़ी मेरे गेट पे लगती है। इनसे पूछिए, यही हथकड़ी जाके किसी मुजरिम के ऊपर लगाए, मैं भी मानूं। मुजरिम पकड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है, दम नहीं है इनका। और यहाँ मेरे गेट पे ये ताला लगा के फिर यहाँ बयान देते हैं कि कोई बंद नहीं है। शुक्र है आप लोग आए, मेरे गेट पे आप लोगों ने ताला देखा। सुबह से ताला लगा हुआ और एलजी साहब झूठ बोलते हैं, ये पुलिस वाले सब झूठ बोल रहे हैं। चाहता था आप लोगों के साथ मिलूं, बात करूं, आज के जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में कुछ कहूं, लेकिन ये लोग चाहते नहीं है कि मैं निकलूं। और वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी हतमी मंजिल नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हमारी नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए
एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। आप जानते हैं 1947 में एक सरकार थी, पार्लियामेंट था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए और जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी। उसके बाद 77 साल के बाद एक दूसरी जमात आई जिन्होंने पिछले 77 साल से एक ही रट लगाई थी कि हम पावर में आएंगे और 370 को खत्म करेंगे। उन्होंने कर दिया, मगर ये हमारी हार नहीं है, ये इस मुल्क की हार है। धोखा उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया। आज 370 को आर्जी कहते हुए उन्होंने मुल्क को कमजोर कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को मजबूत किया जो बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इल्हाक आर्जी है। तो आज 370 को आर्जी कहते हुए आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आर्जी करार देके उसको तोड़ दिया। जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ 1947 में, आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 370 के तहत खुसूसी दर्जा दिया था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह जंग के वक्त में एक आर्जी इंतजाम था। वकार रसूलवानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जमीन और मुलाजमत के हुकूक के तहफ्फुज के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में रियासती हैसियत की बहाली और इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की भी सताइश की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वार टाइम में दिया गया था, तो मैं ये कहूंगा कि हम फख्र से कहते हैं कि 370 कांग्रेस की तरफ से दिया गया था और बीजेपी की एक लॉन्ग स्ट्रेटजी रही कि इसको हटाया जाए। अब जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने हटा दिया, लेकिन एक चीज़ का हमें दुख है, जो एक्सपेक्टेशन लोगों को थी कि हमारी लैंड जो है वो सेफ रहे और हमारे जॉब्स की प्रोटेक्शन का मिले, वो उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे एक लंबी स्ट्रगल जो है लड़ते रहेंगे ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों का जॉब, नौकरियां और ज़मीन जो यहाँ की है वो प्रोटेक्ट रहे। हमें यकीन है और उम्मीद है कि आगे जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और हमारी पूरी प्रयास होगा कि जॉब और ज़मीन की जो है प्रोटेक्शन वो रहे। इसके बाद हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कि यहाँ पे जो 10वां साल चढ़ गया, इलेक्शन नहीं हुए थे और अभी तो छोटे छोटे इलेक्शन जो हमारी स्टेट में होते थे वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिए। उसके लिए हमने कुछ दिन पहले ऑल पार्टीज़ की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था, जिसमें एक मेरी लंबी चौड़ी स्पीच भी रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ सस्पेंड नहीं कर सकते हो, आप डेमोक्रेसी को यहाँ सस्पेंड नहीं कर सकते हो। इमीडिएटली यहाँ इलेक्शन किया जाए और सितंबर तक डेट भी दी गई कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो। उस डिसीजन का हम वेलकम करते हैं, लेकिन जो लोग हमारे उस प्रोटेस्ट को जो हमने पिछले सालों से किया कि यहाँ इलेक्शन हो, यहाँ डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनको आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करारा जवाब मिल गया। और वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और तारीखी फैसला दिया था। रविंद्र रैना ने कहा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सी बिरादरियों और तबकों को नजरअंदाज किया गया और इनके साथ इम्तियाजी सलूक किया गया, लेकिन अब इन्हें भी तमाम फवायद हासिल होंगे। इन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तस्वुर की तायद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबको मानना चाहिए। ये फैसला सबके लिए है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अभी तक नजरअंदाज होते रहे हैं। राणा ने कहा कि अब इन्हें उम्मीद है कि आर्टिकल 370 पर तमाम सियासत खत्म हो जाएगी। फैसला लिया है, एक लंबी बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसके बाद यह फैसला लिया गया और मेरा ये मानना है कि
और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैरमकदम किया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सितंबर 2024 तक इंतखाबात का अमल शुरू करने की हिदायत की है और मरकजी हुकूमत को रियासत की बहाली के लिए इकदाम करने की भी हिदायत की है। तंजीम के सदर अनिल शर्मा ने कहा है कि AJKPC रियासत की बहाली और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैरमकदम करती है। यह इंतहाई काबिल तारीफ फैसला है। सरजमीन श्रीनगर में इस वक्त मैं हूं और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है जम्मू कश्मीर के हवाले से कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में 30 सितंबर तक इलेक्शन जो है असेंबली के करवाए जाए। और दूसरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है जहां स्टेटहुड जो है वो बहाल की जाए, स्टेटहुड दी जाए। बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तमाम 40,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहिद से प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो खंडपीठ ने जो आज फैसला दिया है उसका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। क्योंकि बड़ी देर से जम्मू कश्मीर के अंदर जहां इलेक्शन जो है नहीं हो पाए हैं, इसलिए बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हम लोग अपील कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जल्दी से जल्दी आप इलेक्शन जो है अनाउंस करें और वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पे जम्मू कश्मीर से इलेक्शन की शुरुआत की जाए और एक ही वक्त पे जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ 2024 में असेंबली के चुनाव और उसके साथ साथ अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडी के पंचायतों के चुनाव भी जो है वो करवाए जाए। और वही वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैरमकदम किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले पर जश्न मनाया। बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि 370 जो बिल्कुल खत्म कर दी है नरेंद्र भाई मोदी साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने। आज तो इतनी खुशी है क्योंकि इतनी खुशी कभी दूल्हे की बारात में नहीं होती है जितनी आज वेस्ट पाकिस्तानी को खुशी हो रही है। आज जो भी बच्चे हैं जो फार्म लगा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, जहां मर्जी फार्म लगाओ, आज तो सब कुछ कर सकते हैं वेस्ट पाकिस्तानी को। और एक बहुत बड़ा इसने मोदी साहब ने दिया है जो वेस्ट पाकिस्तान फौजी को। इनके साथ साथ जो गोरखा समाज है उनको भी बेनिफिट हो गया है, जो वाल्मीकि समाज है उनको भी बेनिफिट हो गया है ये 370 खत्म होने का। और सेव शारदा कमेटी के सरबराह रविंदर पंडिता ने 370 की मनसूखी को बरकरार रखने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैरमकदम किया है। जो अहम फैसला आया है दफा 370 को लेके, जैसे माननीय उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, ये तो ऑब्वियस था। मुझे लगता है जो मेरी जाती राय है कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से ऊपर है। क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से डेमोक्रेसी में कुछ लोग जो उछाल लिए इस मामले को, जो इतना लंबा खींच लिए, तो इसमें उनको पहले हिस्ट्री भी देखनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या गलतियां करी है। एज ए रियासती मैं समझता हूँ 1952 का जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट लागू हुआ, जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो मेरे ऊपर एक सिटीजनशिप आयद हुई भारतीय होने की। तो अगर हमने उस टाइम एक्सेप्ट किया हमारे पूर्वजों ने, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भंग होना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टरशिप J&K की हटनी, चीफ मिनिस्टरशिप आनी, एक स्टेट असेंबली आनी, तो यानी कि ये बड़ा क्लियर था कि वी आर गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन लॉज। सो अब ये 35 से 370 हटने से जो भी रणबीर पैनल कोड हट के IPC आ गया, एक मुख्य धारा में हमारा विलय होना, इस चीज का हमें स्वागत करना चाहिए। और हमें ये देखना चाहिए कि अब जो वो चीजें गई वो पुरानी, जो नए कदम बढ़ाने चाहिए, जो फिजा बदल रही है, इधर डेवलपमेंट की तरफ लगना चाहिए और हमारे जो है पीस इनिशिएटिव्स उठने चाहिए। मैं इस चीज की आशा करता हूं। और अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने दफा 370 की मनसूखी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि एक मरतबा फिर यहां के लोगों के जख्म हरे हो गए हैं। मीर ने कहा कि आज तक दफा 370 के बारे में जो उन्हें कहा गया वो जाहिर हुआ है कि ये किस तरह आर्जी था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले में जिस तरीके से उन्होंने ये करार दिया कि ये एक टेम्पररी प्रोविजन था
यह कोई परमानेंट प्रोविजन नहीं था। तो इससे लगता है कि जो चीज़ हमें बतलाई गई थी वो सही नहीं थी। जाहिर सी बात है, इससे लोगों को नाउमीदी हो गई है। उनको एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा केस बड़ा स्ट्रांग है लोगों को और फैसला हमारे हक में आया, लिहाजा जाहिर सी बात है लोगों में नाउमीदी है। लोगों के दिलों पे 5 अगस्त को भी जख्म लग चुका था, आज ये जख्म फिर से हरा हो गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर के लोगों को दूसरे मुल्क के लोगों की तरह ऊन करने की ज़रूरत है। जहां दूसरी रियासतों में उनकी प्रोटेक्शन के लिए खुसूसी चीज़ें प्रोटेक्शन करने के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल, यहाँ मैं आपको रोकना क्योंकि ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यहाँ आर्टिकल 370 में 2-3 चीज़ें अहम थी। एक ये था कि ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़। गो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डोमिसाइल लॉ के ज़रिए नौकरियों और ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, लेकिन लोगों के जज्बात को समझने के लिए, इनको ये समझाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो इसको आईनी तौर तहफ़्फ़ुज़ दे। आइन में जिस तरह से बाकी रियासतों के लिए आर्टिकल 271 है या अदर प्रोविजंस है, जम्मू कश्मीर को नौकरियों और ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ऐसा ही आइनी पोजीशन देने की ज़रूरत है। और हुकूमत जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में ख्वातीन को 33% रिजर्वेशन देने से मुतालिक बिल आज लोकसभा में पेश करेगी। ख्याल है कि पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल मंजूर और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल को ही मंजूर किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल की रूह से जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में तरमीम की गई है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल की रूह से 2019 के मुताल्लिका एक्ट में तरमीम की गई है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में मजमूई सीटों की तादाद के ताल्लुक से 1950 के एक्ट के दूसरे गोशवारे में तरमीम की गई है। इस बिल की रूह से सीटों की तादाद बढ़ाकर 90 कर दी गई है।